Alright, so in today's video what we are going to discuss about is Timespeed 400's long-term ownership review by a user. So just to give you a little background, I own this machine for almost a year now, more than a year I would say, because I purchased this bike last year September, and when I am recording this video it's October right now, and I have completed close to 16,000 kilometers as well. So I thought I might be in a good position to share my ownership experience, long-term review, what all are the pros and the cons of this motorcycle, and if it is a good suit for you or not under the बजट ऑफ 3 लाख रुपीज़ इन इंडिया। हाँ तो जी, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है टाइमस्पीड 400 का लॉन्ग टर्म रिव्यू। कैसी ये मोटरसाइकिल है, एक ओनर अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करता है। मैंने इसको जैसे लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है इसको ख़रीदे हुए, और मैं इसको तकरीबन 16,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के हेल्प के थ्रू जो इस मोटरसाइकिल को लेना चाहते हैं या मन बना रहे हैं इस कैटेगरी में, 2 लाख से 3 लाख वाले कैटेगरी में अगर मोटरसाइकिल लेने का ऑप्शन इसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्या क्या इस बाइक में खूबियाँ हैं, कमियाँ हैं और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो में हम वही सारी बातें करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइलेज, हाउ मच माइलेज यू विल गेट। I think this is one of the most important question in our country, because if it's not going to give you a good mileage, it is going to be a little heavy on your pocket. There are a lot of rumors, there are a lot of users who have complained that this bike only gives a mileage of 20 kmpl. Some users said they are only getting 15 kmpl. I'm not sure what they are doing with the bike. In my personal experience so far, I have done multiple mileage tests as well. See, first thing you need to understand if you talk about the mileage is who is riding the motorcycle and how he or she is riding the motorcycle have a great influence of the mileage of the motorcycle. First thing, you need to maintain the chain. It needs to be properly clean and lubed in every 500 or 700 kilometers. That is a must. You need to make sure that bike have a accurate tire pressure based on the company's recommendation. So company recommends 26 psi for the front and 33 for the rear. So, and another thing, how you pull the throttle and how you are on the brakes, it also impacts the mileage you are going to get. In my personal experience, if I would talk about the city, so city mileage varies from 22 to 29 or 30. And how? See, if you are going to ride a motorcycle for a short distance, 10 kilometers, 20 kilometers in a day, so you will hardly get 23, 24. That is the case, because the moment the bike actually starts giving the mileage, you are going to stop. So it is greatly going to impact the overall mileage of the motorcycle. If you are going to ride around 40, 45 or 50 kilometers in a day within the city, even in the bumper to bumper traffic, you will easily get 25 or 26 kmpl. However, if you are going to ride 100 or 110 kilometers, which I usually do sometimes, whenever I used to go to my office in the Gurgaon, I have traveled like 100 or 110 kilometers in a day, and those, especially in Delhi Gurgaon route, there is a lot of bumper to bumper traffic. And even in that bumper to bumper traffic, I have achieved 28, 29 and 30 many times. So I would say from 22 till 30 you will achieve in the city. Now talking about the highway mileage. So for highway mileage, if you are riding above 120, let's suppose you are cruising at 130 or 140, you will only get 21 or 22 kmpl. And I have done that also. I have continuously ridden for 140 at the speed of 140, and I get close to 22.5 something on the highway, that is on the expressway. If you are riding between the speed of 100 to 120, you will easily get 28 to 30 kmpl. I think that is impressive. And if you are going to ride in the bracket of 80 to 100, you can easily get 36 or 38. So I have done these mileage tests as well. There are few videos I have uploaded on my channel. If you want, you can check them out. हाँ, तो जो अगली चीज़ जो इस मोटरसाइकिल के बारे में हम बात कर सकते हैं वो है इसका माइलेज। तो ये कितना माइलेज देती है, जो कि सबके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी रनिंग कॉस्ट क्या आती है वो माइलेज पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है।
काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने वीडियोस वगैरह और कई जगह पे बोलते हैं कि उनको ये मोटरसाइकिल माइलेज नहीं दे रही है। कोई बोलता है 15 का दे रही है, कोई बोलते है 20 का दे रही है। अब मुझे नहीं पता कि वो कैसे मोटरसाइकिल चला रहे हैं और नहीं चला रहे हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि किस तरीके से आप मोटरसाइकिल को रखते हो, किस तरीके से आप उसको चलाते हो, उससे माइलेज का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आपकी बाइक की चेन क्लीन और लूप प्रॉपर होनी चाहिए हर 500 से 600 किलोमीटर के आसपास। आपका टायर प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। कंपनी बोलती है 26 का प्रेशर फ्रंट वाले में और 33 का प्रेशर रेयर वाले में। और किस तरीके से आप थ्रॉटल दे रहे हैं और किस तरीके से आप ब्रेकिंग कर रहे हैं, उससे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आपको बाइक कितना माइलेज देगी। तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 1 साल में, मैं जब भी फ्यूल भराना जाता हूँ तो मैं मोस्टली टैंक फुल ही इसको चलाता हूँ। तो हर बार मेरे को ऑलमोस्ट माइलेज फिगर मिल ही जाते हैं। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सिटी में वो ऐसा है कि अगर आप 10 से 15 किलोमीटर चला रहे हो दिन की, तो आपको 22, 23, 24 का ही माइलेज देगी। अगर आप इसको 40-50 किलोमीटर चलाओगे दिन में, तो ये आपको 25-26 का भी माइलेज दे देगी बड़े आसानी से, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी। और अगर आप इसको 100 या 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलाएंगे दिन में विद इन अ सिटी ऑल्सो, तब आपको ये आराम से 29-30 का माइलेज दे देगी। क्योंकि मैं जब गुड़गांव ऑफिस में को जब जाना होता है तो मेरा दिन का अप डाउन 110 किलोमीटर के आसपास हो जाता है, और वो भी दिल्ली से गुड़गांव वाले ट्रैफिक, जिसमें आपको काफ़ी लोगों को पता है कि किस तरीके की कंडीशन रहती है उस ट्रैफिक में। उसके बाद भी मेरे को ये बाइक ने 28, 29, 30 का माइलेज दिया है। अब आते हैं हाईवे माइलेज पे। तो हाईवे माइलेज मैं आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। एक, अगर आप 120 से ऊपर वाली स्पीड पे भगाएंगे इसको, जैसे मान लो आप 130, 140 पे भगा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो ये आपको माइलेज देगी 20, 21, 22 का। ठीक है, ये मैंने ट्राई किया है। 1 घंटे मैंने पेट्रोल पंप टू पेट्रोल पंप नॉन स्टॉप 140 की स्पीड में भगाई थी, तो मेरे को इतना ही माइलेज निकला था। फिर आता है एक अगली कैटेगरी, अगर आप इसको 100 और 120 के बीच में चलाते हैं। अगर आप 100 और 120 के बीच में इसको चलाएंगे तो ये मोटरसाइकिल आपको आसानी से 28, 29, 30 का माइलेज दे देगी हाईवे पे। वो हो सकता है 31 भी दे दे, वो आपकी बाइक की कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा। और अगर आप इसको 80 से 100 वाले ब्रैकेट में चलाएंगे तो बहुत आसानी से ये आपको 36-37 का भी माइलेज दे देगी। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी रहा है, बाइक ने इतना माइलेज दिया है, और मैंने कुछ वीडियोस भी डाले हैं अपने चैनल पे, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं।